কাটায় এখন রাত্রি 12:30। আমরা হঠাৎ মনে করলাম যে একবার উপর থেকে একবার ঘুরে আসি। তো ক্রুজের ডেকের একদম উপরে, সমুদ্রের একদম মাঝে, দিস ইজ দ্য ভিউ। কেমন লাগছে বল? সুইডেনে এসে আমরা প্রথম সুইডেন ছেড়ে একটা অন্য কান্ট্রিতে এলাম, ফিনল্যান্ড, মানে নট এলাম, যাচ্ছি অন দা ওয়ে। তো কেমন লাগছে? হ্যাঁ, বেসিক্যালি এটা সুইডেন থেকে একদম কাছের কান্ট্রির মধ্যে একটা হলো এই ফিনল্যান্ড হেলসিঙ্কি। তো এটা একটা 16 আওয়ার্সের জার্নি ফ্রম সুইডেন টু হেলসিঙ্কি বা ফিনল্যান্ডের রাজধানী হলো হেলসিঙ্কি। তো হ্যাঁ, ইন্ডিয়া থেকে সুইডেন আসার পর প্রথমবার সুইডেনের বাইরে যাচ্ছি, ডেফিনেটলি ভালো লাগছে। একটা অন্য কান্ট্রি, আরও চারপাশে সব কান্ট্রিগুলো এক্সপ্লোর করার ইচ্ছা তো আছে, বাট এই 3 মাস পরে সুইডেনে আসার পর 3 মাস পরে আমরা সুইডেন থেকে বাইরে বেরোচ্ছি। তো ডেফিনেটলি এক্সাইটেড। এটা একটা বড় জার্নি নয়, একটা উইকেন্ডের মধ্যেই করে নেওয়া সম্ভব। জাস্ট আজকে আমরা যাচ্ছি, কাল সকালে ওখানে পৌঁছে যাব, আবার কাল বিকেলেই স্টার্ট হচ্ছে ওখান থেকে আবার এই ব্যাক জার্নিটা। তো ইটস এ শর্ট বাট ইট উইল বি এ গুড ট্রিপ। কি মনে হয়? হ্যাঁ, অফকোর্স। বাট হ্যাঁ, আমরা ফিনল্যান্ড পুরো কভার করছি না, আমরা আবার একটা অন্য প্ল্যান করব, তখন আমরা লাপল্যান্ড টাইপ এইগুলো স্পেন্ড করব। একদম ডেফিনেটলি, মানে ফিনল্যান্ড তো বেসিক্যালি একদিনে হয় না, এটা জাস্ট একটা অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স, যেটা আমরা এই জলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, এই এক্সপিরিয়েন্সটা নিচ্ছি। পরবর্তীকালে উইন্টার সিজনে গিয়ে আমরা ওই ল্যাপল্যান্ড বা অন্যান্য যে পার্টগুলো আছে উইদিন ফিনল্যান্ড, এবং উইন্টারের ফিনল্যান্ড ইজ এ টোটালি ডিফারেন্ট, তো ওটাও এক্সপিরিয়েন্স করার ইচ্ছা আছে। তো পরবর্তীকালে আবার যাব, বাট এটা একটা স্টার্ট, ছোট্ট একটা স্টার্ট উইকেন্ডের ট্রিপের মধ্যে দিয়ে যেহেতু করা গেল একটা অন্য কান্ট্রি, তার জন্য আমরা এটা চলে এলাম আপাতত। তো আমরা একবার দেখিয়ে দিই পিছনটা কেমন। Sabah sabah. This was basically a 15th floor cruise which having all the amenities you can expect. क्रूज के अंदर ही आपको मिल जाएगा सेवरल टाइप ऑफ कुजीन्स एंड लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स आर देयर। अगर खाना हो गया तो आप वहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो। अगर क्रूज में जो ड्रेसेस आप लेके आए हो अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो यू कैन बाई इट एंड ट्राई इट विद इन दैट क्रूज। This was basically a 16-hour journey from Stockholm, Sweden to Finland, Helsinki. बट इसके अंदर ना आपको इतना एमिनिटीज मिल जाता है तो आपको कब टाइम चले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अपार्ट फ्रॉम फूड एंड शॉपिंग क्रूज के अंदर ही एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारा ऑप्शन था, जहाँ पे थिएटर रूम था, सिंगिंग, डांसिंग, गेम शो, चिल्ड्रन प्लेग्राउंड, एवरीथिंग वाज अवेलेबल विद इन दैट क्रूज। With this video, I will try to cover each and every aspect of this whole trip from Stockholm to Helsinki. So be there till the very end to enjoy and understand all the details of this trip so that you can plan it better next time. So now we are at the top floor which is 12th floor। तो ऊपर से व्यू आपको दिखाते हैं शिप का एकदम टॉप डेक से। ये रहा व्यू, कितना जबरदस्त। ये सब एक एक आइलैंड है, ये सब पार होके हम लोग जाएंगे आज फिनलैंड।
Sweden is mainly consist of 2 lakh plus island. Yes, I repeat, 2 lakh. और ये सभी आइलैंड बाल्टिक सी पे है। तो हम लोग जब जर्नी स्टार्ट किए थे ना स्टॉकहोम से, सो एक के बाद एक आइलैंड क्रॉस करके हम लोग जा रहे थे फिनलैंड की तरफ, और वो सब दिख रहा है आपको अभी। ऊपर क्रूज का डेक में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग आए थे नीचे, और ये जो आप देख रहे हो दिस इज़ द ड्यूटी फ्री शॉप विद इन द क्रूज, जहाँ पे आपको अल्कोहल, परफ्यूम, चॉकलेट्स एंड एवरीथिंग मिल जाएगा, वो भी ड्यूटी फ्री का टैक्स फ्री रेट में। चलो अब क्रूज का अंदर का रूम का टूर भी आपको दे देते हैं। क्रूज के अंदर हम लोग को 2 नाइट स्पेंड करना था, तो रूम तो मस्ट था। तो हम लोग ना 4 फ्रेंड मिलके एक ही रूम लिए थे। तो यू कैन ऑल्सो प्लान अकॉर्डिंगली। आप 2 जन मिलके भी एक रूम ले सकते हो, 4 जन मिलके भी एक रूम ले सकते हो, एज पर योर प्लान एंड अफोर्डेबिलिटी। तो विद इन द रूम वी हैव 4 बेड्स, 2 इन द राइट, 2 इन द लेफ्ट एंड 1 डेडिकेटेड वॉशरूम। ওয়াও, এই জায়গাটা কি সুন্দর না রে? গোল ফ্রেমটাও বেশ ভালো। তো আমাদের এই ক্রুজ ছেড়েছিল 4:30 ইন দ্য ইভিনিং। এখন ঘড়িতে বাজে রাত 9:24। জাস্ট এখন সানসেট হচ্ছে, এখনো পর্যন্ত হয়নি, সান ইজ স্টিল দেয়ার। এবার আমরা ফিনল্যান্ডের কাছাকাছির দিকে যাচ্ছি। তো সুইডেন থেকে অনেকটাই বেরিয়ে গেছি। সুইডেনে থাকাকালীন যেমন আমরা বলেছিলাম না যে ওটা হচ্ছে অনেক কটা আইল্যান্ডের সমষ্টি, তো চারপাশে অনেক আইল্যান্ড দেখা যাচ্ছিল ছোট বড়। তো এখন কিন্তু আমরা একদম মাঝ সমুদ্রে এসে পৌঁছেছি। তো যতই ফিনল্যান্ড বা হেলসিঙ্কির দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি ততই আমরা একদম মাঝ সমুদ্রের দিকে এসেছি, যেখানে দূর দূরান্ত পর্যন্ত কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, অনলি জল আর জল। এখনো পর্যন্ত ডেকে অনেকেই আছে যারা এখন সানসেট এনজয় করছে। ঠান্ডা কিন্তু বাড়ছে, এটা কিন্তু বলতে পারি। যত রাত বাড়ছে তত ঠান্ডা বাড়ছে। আমরা যদিও ঠান্ডার কোনো রকম ইকুইপমেন্টই নিয়ে আসিনি, জাস্ট একটা করে নর্মাল জামা পরে চলে এসেছি। এক্সপেকটেশন ছিল না এতটা ঠান্ডা হবে, বাট যথেষ্ট কিন্তু ঠান্ডা বাড়ছে। আমি কথা বলতে গিয়েও বুঝতে পারছি আমি একটু একটু কাঁপছি। মানে একটু পরেই হয়তো আমরা নিচে চলে যাবো, আর ওপরে থাকার মতন অবস্থা হবে না। তো সানসেটটা দেখতে এসেছিলাম, অলরেডি ডিনার করে নিয়েছি। রাত্রি এখন 9:30। আমরা কালকে সকাল 9:30টায় পৌঁছাবো হেলসিঙ্কি বা ফিনল্যান্ডে। এবার ওখানে গিয়ে একটা 5 ঘন্টার একটা ব্রেক থাকে, আবার এটা আবার বিকেল 4:30 5:30টার সময় আবার স্টার্ট হয় ওই হেলসিঙ্কি থেকে টুয়ার্ডস স্টকহোম। তো এটা একটা ওয়ান অফ দ্য পপুলার ট্রিপ যেটা আমরা করতে বেরিয়েছি। পুরো এক্সপিরিয়েন্সটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব, আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে। তো এবার যাওয়া যাক নিচের দিকে। এটা হচ্ছে টপ ডেকটা, এই যে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সব ফটো তুলতে ব্যস্ত, সব পোজ দিতে ব্যস্ত। এই যে শুভম, শিল্পা, কল্পনা, সব পোজ দেওয়া চলছে একের পর এক।
And this was the sunset we witnessed. So it was absolutely magical. एंड ये था प्रोग्राम प्लान ऑफ द क्रूज। कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे जुक बॉक्स हो रहा है, कहाँ पे डीजे चल रहा है, कहाँ पे कैरियोके नाइट चल रहा है, एवरीथिंग इज देयर अलोंग विद द टाइमिंग्स। और रात जितना बढ़ रहा था क्रूज के अंदर, पार्टी का मोड भी उतना ही बढ़ रहा था। एंड एज पर द प्लान हम चले गए थिएटर रूम पे। दिस वॉज द लाइव थिएटर रूम, जहाँ पे पूरा थिएटर चल रहा था। कभी डांसिंग, कभी यहाँ पे सिंगिंग हो रहा था, कभी ड्रामा टाइप का कुछ हो रहा है, क्विज कंपटीशन हो रहा था, सब कुछ चल रहा था। मतलब फुल ऑन एंटरटेनमेंट, इवनिंग से लेके लेट नाइट तक। And this is how our day one of the trip ends. Next day, our destination was Finland. At around 10:30 in the morning, we have reached our destination Helsinki. तो हम लोग वहाँ पे उतर के निकल गए हेलसिंकी को एक्सप्लोर करने के लिए. So now we have arrived to Finland, Helsinki, the capital of Finland, which is Helsinki. हम लोग अभी एक फेरी लेंगे. फेरी लेके हम लोग सुमोलिना आइलैंड जाएंगे. आप सिटी भी एक्सप्लोर कर सकते हो, एक आइलैंड भी है, उधर भी जा सकते हो. और दूर से दिख रहा है ये वाला एक कैथेड्रल. यहाँ पे एक गोल जायंट व्हील भी दिख रहा है. और उधर से हम लोग को लेना है फेरी. तो फिनलैंड पे आके आपको क्या क्या करना है, बिकॉज हम लोग के पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं. शाम को फिर से अराउंड 4:30 वी हैव टू स्टार्ट और लौट के जाना है. तो तब तक जितना टाइम मिल रहा है उसके हिसाब से अभी हम यूटिलाइज करेंगे. वो रहा वाइकिंग लाइन्स वाला शिप और ये रहा हम लोग का सिल्जा लाइन वाला शिप.
तो सिल्जा लाइन से हम लोग आए, वाइकिंग लाइन्स और एक है जिससे आ सकते हो आप, बट सिल्जा इज़ वेरी गुड। तो हम लोग को लेना था 11:30 वाला सुमोलिना आइलैंड वाला क्रूज़, बट हम लोग हो गए 1 मिनट लेट। और ऐसा लेट कि कल्पना ऑलरेडी चले गए और शिल्पा अंदर घुस नहीं पाया, उसको बाहर रहना पड़ा। तो हम लोग 11:45 वाला क्रूज़ लेंगे। तो क्रूज़ ऑलरेडी आ रहा है, तो उसमें चढ़ के हम लोग जाएंगे सुमोलिना आइलैंड। वो रहा, दिख गया क्रूज़। तो उसमें चढ़ के हम लोग सुमोलिना आइलैंड जाएंगे। तो क्रूज़ अभी आ गया है, चढ़ते हैं उस बोट पे और जाते हैं और मिलते हैं सुमोलिना आइलैंड पे। into the ferry towards Somolina Island, और एक फेरी इधर से आ रहा है। यहाँ पे जस्ट एक सी साइड स्विमिंग पूल, इट कैन बी एन यूनिक एक्सपीरियंस, एंड दैट्स द जायंट वेल। देयर इज द कैथेड्रल, कैथेड्रल में हम लोग आएंगे। ये रहा सिल्जा लाइन वाला जिधर से हम लोग आए, फ्रॉम स्टॉकहोम टू हेलसिंकी। बोट पूरा पैक्ड है, सब लोग डेक के ऊपर ही बैठा हुआ है, अंदर कोई नहीं है। एवरीवन इज एट द टॉप। So now we have arrived to Somolina Island. It's UNESCO's one of the heritage site. तो अगर आप फिनलैंड हेलसिंकी पे हो और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, खाली 5 दिन का ही है, जैसे क्रूज़ ट्रिप होता है, नॉट 5 दिन, 5 घंटा ही है, देन यू कैन चूज दिस वन ऑफ द ऑप्शंस, अपार्ट फ्रॉम जस्ट एक्सप्लोरिंग द सिटी नियर बाय, द कैथेड्रल एंड ऑल दोज थिंग्स। तो हम लोग का जो प्लान है, इधर 2-3 घंटा बिताएंगे, उसके बाद सिटी का जस्ट आसपास जो जो चीज़ रहेगा वो सब थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, एंड विल बी बैक देयर अराउंड 4:30 इन द इवनिंग। तो दिस इज़ द सुमोलिना आइलैंड, इधर हम लोग जाएंगे, जस्ट अभी आए ये फेरी से। सो फॉर फेरी आपको क्रूज़ से उतरने के बाद एक नॉर्मल टिकट करना पड़ेगा, पूरा डे टिकट आप कर सकते हो, दैट विल बी कॉस्ट यू अराउंड 10 यूरोज़ और 100 AC के। वो लेके आप विद इन सिटी पूरा एक दिन के लिए कुछ भी कर सकते हो, मतलब ट्रेन, ट्राम, फेरी कुछ भी अवेल कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम तो हम लोग के पास है नहीं, तो फेरी लेके हम लोग इधर आ गए, और विद इन सिटी हम लोग ट्राम लेके थोड़ा इधर उधर एक्सप्लोर कर सकते हैं, दैट्स कैन बी एन ऑप्शन। तो चलिए। तो सिमुलिना आइलैंड से हम लोग आए पार्ट ई पे, जो एक फोर्ट्रेस है। पुराना दिन पे यहाँ से जब लड़ाई होती थी या कोई वार होती थी, तब यहाँ पे लोग छुपने के लिए आते थे या यहाँ से गोली वगैरह सब चलाते थे। तो दिस इज़ बेसिकली गिविंग ए 360 डिग्री व्यू ऑफ द होल सिटी, जहाँ पे आप रह के पूरा सिटी को माप सकते हो। तो इसके लिए लोग यहाँ पे फोर्ट्रेस या ये वाला जगह, शेल्टर लेने का जगह बनाए थे। तो दिस इज़ गिविंग ए वेरी गुड व्यू, एकदम आप यहाँ से पूरा जगह का व्यू देख पा रहे हो। दिस इज़ काइंड ऑफ आइलैंड, या डेफिनेटली इट्स आइलैंड। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा टाइम रह के फिर से जाएंगे दूसरी जगह।
So now it's time to return back to Helsinki. और ये था वो सी साइड स्विमिंग पूल वाला रिसोर्ट जहाँ पे बहुत सारा लोग एंजॉय कर रहे हैं विद इन दैट. In Helsinki, we had our lunch in this Italian pizzeria. तो ये एक अच्छा ऑप्शन था, एकदम ऑथेंटिक इटालियन रेस्टोरेंट पिज़्ज़ा का. एंड एज पार्ट ऑफ देयर इंटीरियर दे हैव पुट सम फुटबॉल प्लेयर्स जर्सी विद इन, जहाँ पे एसी मिलान का जर्सी और वो पिल्लो का जर्सी मेरे को दिखा. एंड या इट वाज गुड, फूड वाज आल्सो गुड एंड देयर टैगलाइन वाज स्ट्रेट आउट ऑफ नापोली. सोमोलिना आइलैंड घूमने के बाद अगर आपके पास टाइम रहेगा तो यू कैन डेफिनेटली गो टू दिस चर्च. ये चर्च ना अभी बंद था इसीलिए हम लोग अंदर नहीं जा पाए, बट आप लोग ट्राई कर सकते हो ये जगह. तो कैथेड्रल में जाने के लिए हम लोग को वहाँ से लेना पड़ा था एक ट्राम, और ट्राम से हम लोग पहुँच गए थे वो कैथेड्रल पे. Another popular cathedral within Helsinki is this one, जिधर अभी हम लोग जा रहे हैं. You can see the texture. Wow. Both the cathedral and churches you can see in the same frame. That is the one जो हम लोग गए थे, बट अभी थोड़ा मेंटेनेंस का काम चल रहा है इसलिए अंदर घुसने नहीं दिया. एंड दिस इज़ द सेकंड वन जिसके अंदर अभी हम लोग जाएंगे. बोथ आर वेरी नियर, जस्ट आउटसाइड ऑफ दैट शिप यार्ड यू कैन से, जहाँ पे हम लोग को लौट के जाना है विद इन 4:30. तो हम लोग ये 2-3 जगह कवर करके विल बी बैक टू आवर क्रूज़. कैथेड्रल में उस दिन एक मैरिज सेरेमनी चल रहा था, तो हम लोग का वो वाला एक्सपीरियंस भी उस दिन हो गया. और चर्च के बाहर शादी के बाद ब्राइड और ग्रूम के लिए ये रोल्स रॉयस भी बाहर खड़े थे. तो अभी हम लोग आगे हैं यहाँ का जो लोकल मार्केट है हेलसिंकी का, उधर हम लोग का शिप उधर वेट कर रहा है. हम लोग ये मार्केट थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद शिप के उधर चले जाएंगे. तो यहाँ पे अगर आपको कुछ सुवेनियर वगैरह शॉपिंग करना है, कुछ मैग्नेट वगैरह, तो यू कैन टेक, और एनीथिंग एल्स यू वांट टू हैव, और कुछ खाना वगैरह खाना है तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई. तो इधर का सैमन सूप इज़ क्वाइट फेमस. I have not tried, but you can definitely try if you want. तो ये रहा मार्केट, काफ़ी सारा लोग अभी शॉपिंग कर रहे हैं इधर. हम लोग भी थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं.
After our day trip to Helsinki, Finland, it's the time to return back to the cruise. एंड क्रूज के अंदर हम लोग के लिए था फुल बुफे डिनर, तो ये इंक्लूडेड नहीं है. इफ यू वांट यू कैन ऑप्ट फॉर दैट वन विथ सम एक्स्ट्रा अमाउंट. And now it's time for our day 2 sunset from the cruise. And now it's time to say goodbye. तो आपका अगर ये ट्रिप के बारे में कुछ भी डिटेल्स में जानना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आई विल रिप्लाई यू बैक. टेक केयर एंड गुड बाय.